Research beyond light. Okay, sir. Okay, sorry for the disturbance. You guys, एकता केवल you must be having some questions regarding victory. You can ask. So, is there any particular question? Like you can write it in the chat box or just unmute yourself. I Suraj, the headframe is cutting. Sorry? The headframe is cutting. Okay. Is it I'm able to see my completely. Is it something like अभी थोड़ा सही है? Is it better now? Yeah, okay. Okay. Yeah. So like, do you guys have any query? मतलब कोई question है related to my previous session or related to related to something? Anything? Okay, cool. So if you don't have any specific questions, so I'll get started with like what I have prepared. Okay, so is my screen visible? Is my screen visible? Yes or a no, guys? Yes, it is. Okay. Okay, so like how many of you are like what is this collab notebook is or a Jupyter notebook or even Python? You all can just raise your hand or write a +1 in the chat box if you are familiar with this. Okay, I guess there's a question in the chat box. Let me check. Give me a second. I'm checking this question. What is the matrix over here? Krishna. सर वीक 2 का असाइनमेंट क्वेश्चन है फाइंड अ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ 1 - 1 - 2 2 2 - 2. Okay. Let me check. I want to share my screen for this. Sorry. I want to share my screen for this. I have solved this question using the NumPy, but as I have corrected the answer also, but I wanted to ask some question within the option only. Okay. So you want to share your screen? Okay. Okay. I will allow you to do this, but first let us solve this question. Okay. Let us solve this question together. Okay. So the matrix given to us is 1 - 2 2 - 1 2 - 2. 2 and -2, right? This is the matrix, right? Yes, sir. Okay. So what will be the first step? We want to find out the SVD of it. We want to find out the SVD of it. Okay. So somebody just said eigenvalue EVD. So can we find eigenvalues of this matrix? Sir, see, it is not a square matrix.
Yes, But it is not the a square val- matrix, So right? eigenvalue is not a correct word to say. But Right. we have to consider the lambda, where ax is not equal to lambda x. Okay, but Okay. we'll consider about the lambda. So we Right, will right. So we want to compute something like this, AV equal to lambda U, right? This is what we want. We want sir. V and U vectors and lambda. So we have A with us. We want to compute V. We want to compute lambda. We want to compute U. Okay, so let us go step by step. First, what is the first step? What is the we first have, step? we have to compute lambda. Okay, we have to compute lambda. What is lambda? We have to Lam- compute lambda. What is lambda? Lambda is like an eigenvalue in EVD. Lambda is like an eigenvalue in EVD. EVD. So basically we call it as sigma over here, right? We call Yeah, it it is sigma. sigma. Okay, what is that sigma? Like what is this sigma? If I write it as what is this sigma? If I want to calculate this sigma, which we use in our SVD, Basically, we have can also say that it is a rank and determinant of that. no. What Sorry, is this sorry. sigma, guys? Diagonal element. Anybody else? Trace. What is the first step that we will do? Anything? We want to calculate lambda, sigma, or to be particular, we want to calculate the singular values. So what are the singular values? This was also a question, no? What are the singular values? Under root of What- lambda. Exactly, under root of lambda, but what is Eigenvalues it? का under root किसकी- square root किसकी- of the eigenvalues. हाँ, किसकी eigenvalue? A transpose A. Exactly. So this is the first step. Let us calculate A transpose A. Okay, let us calculate this A transpose A. So this is my A vector. This is the A transpose, and we want to calculate A transpose A. So has anybody computed what will A transpose A come out? Yes, 9 minus 9 minus 9, 9. Okay, great. It is 9 Minus minus 9. 9, minus 9 and 9, right? Hmm. Okay. So what will be the eigenvalues of it? Okay, so to 0 and calculate. 18. Okay, yeah, so that's really great. But like, how do we calculate the eigenvalues? So let me call this matrix as B, right? Let me denote A transpose A with not B, let us say X. So let us denote A transpose A by X. Okay. So now basically how do we calculate to calculate eigenvalues? What do we do? X minus determinant of X minus lambda I equal to 0. This is what we do, right? This is how we find out the eigenvalues of any matrix. Okay, so basically we'll take determinant of. Is there any question? I just received a notification. Don't know what was it. Okay. So can like, so what will be this equation? This boils down to मतलब ये equation किस को represent करती है? This is like हम diagonal elements में से lambda subtract करते हैं, which is the. I go to our net. Sorry for the disturbance. And 9 minus lambda, right? So anybody like who does not know this equation, this is called as the characteristic equation of a matrix. Anyone who is not comfortable like here with this equation? This is the like the बस इसको याद कर मतलब अभी के लिए for this इसको अभी के लिए याद कर लो कि this is how we find out the eigenvalue. There are other ways also, but this is like what is the most commonly सबसे commonly used होने वाला तरीका यही है. So lambda I. So I क्या होता है? What is I matrix? I will be like 1 0 0 1 मतलब सिर्फ यहीं पर ना. तो अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा आ जाएंगे, राइट? और मैं अगर इसको माइनस कर दूंगा तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से माइनस हो जाएगा, राइट? तो अब ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 9 माइनस लैम्डा का स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या होती है? हाउ टू एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट? ये तो प्रीरेक है का स्क्वायर और लाइक माइनस माइनस प्लस, बट वील आल्सो हैव वन मोर माइनस, तो माइनस 81, राइट? इक्वल टू 0.
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लाइक इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, राइट? तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और वो क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट? लैम्डा स्क्वायर तो माइनस 18 लैम्डा। हाँ, तो इसलिए 9 माइनस लैम्डा माइनस 9 एंड 9 माइनस लैम्डा प्लस 9. Okay, so basically this goes on. So we have one of the eigenvalue as 0 and the other eigenvalue as 18. 18. Okay, so these are the eigenvalues. What will be the singular values? The singular values of A. These are the eigenvalues of A transpose A. These are the eigenvalues of A transpose A. What will be the singular values of it? Root What under will be the lambda. singular values? So sigma 1 will be under root 0, which is under root 0 itself. And sigma 2 would be under root 18. Sigma 2 would be under root 18, which is 3 root 2, right? Which is 3 root 2, right? So any question? Any question till this point? Hello. Any question? No, sir. Okay, so first step is done. We have the singular values with us. This is what was required to compute the singular thing. This is what, like, we have the singular values with us. What is the second step? Now let us compute the matrix V, capital V, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what is this capital V matrix? What is this capital V matrix? A transpose A. Sorry, A transpose A. A transpose A तो हमने X मैट्रिक्स माना था. अब हमें V कैलकुलेट करना है ना. अब हमें V कैलकुलेट करना है. V जो है वो आइगन वेक्टर्स हाँ, एग्जैक्टली. किसके आइगन वेक्टर्स? आइगन 0 वेक्टर and सिंगुलर 18. मैट्रिक्स के. सिंगुलर मैट्रिक्स के. अच्छा, हमने लाइक एक बात बताओ, अगर मुझे इसको लिखना होता है तो लाइक व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द, लाइक ये सबसे पहले हमें करना चाहिए था. लाइक व्हाट इज, लाइक इन एसवीडी में व्हाट डू वी राइट? A इक्वल टू व्हाट डू वी राइट? इक्वल टू 1 माइनस 1 जो मैट्रिक्स है वो होगा. नहीं, मतलब क्या फॉर्मूला क्या होता है? लाइक व्हाट इज द फॉर्मूला? A इक्वल टू व्हाट इज, क्या होता है? U सिग्मा V U transpose. V ट्रांसपोज. ये होता है ना. तो हम्म. सिग्मा में क्या होता है? सिग्मा में होती है हमारी आइगन वैल्यू. सिग्मा 1 यहाँ पे होता है, राइट? सिग्मा 2 यहाँ पे होता है, सिग्मा n तक. दिस इज द जनरल नोटेशन, राइट? तो कि अभी हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल लिया है हमने, ठीक है. और सिग्मा 2 इसमें सिर्फ 2 ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम खुद सोचो कि नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 2 है और नंबर ऑफ 3 है. तो लाइक अगर हम अपने नॉर्मल इंट्यूशन से जाए तो 2 से ज्यादा सिंगुलर वैल्यूज नहीं आ सकती, राइट? तो इसलिए हमने यहाँ से ये वाला मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं, राइट? अब आई एम आस्किंग कि हमें ये निकालना है, ये वाला मैट्रिक्स. नाउ वी आर लाइक ट्राइंग टू फाइंड दिस मैट्रिक्स. तो अब ये बताओ, वी क्या होता है? आइगन वेक्टर. आइगन वेक्टर्स होते हैं किसके? जो हमारा लैम्डा आता है उससे हम लोग निकालते हैं सिंगुलर वैल्यू. वेक्टर स्पेस से, बेसिस वेक्टर से. क्वेश्चन, हाँ एग्जैक्टली, वो ठीक है, बट मेरा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तुम सबने बोला कि वी जो हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है? आई एम नॉट स्क्रॉलिंग डाउन. we have a this is the matrix V that we want to find V, and it is made up of V1, V2. These are all column vectors. Okay, these are all column vectors V1 V2 up to Vn. ये जो matrix है ये column vectors से बना है. ये क्या है? What are these V1 V2 Vn? What are these vectors?
Unit क्या vector in the direction of lambdas. हाँ मतलब हाँ ठीक है, आइगन वेक्टर्स है, दीज आर द आइगन वेक्टर्स, बट किसके आइगन वेक्टर्स? ए के तो नहीं हो सकता आइगन वेक्टर्स, ए का तो आइगन वैल्यू ही A पॉसिबल नहीं transpose है, तो A. एग्जैक्टली तो ए ट्रांसपोज ए के दीज आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, मतलब मैं ये सुनना चाहता था। तो क्या है ये आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए? दिस इज द जनरल फ्लो जो मैं फॉलो करता हूँ, ये फ्लो मैं फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज ए निकाला, फिर सिंगुलर वैल्यूज निकाली तो सिग्मा पूरा हमारे पास आ गया, अब हमें बी निकालना है। तो दीज आर द आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या है आइगन वेक्टर्स ए ट्रांसपोज ए के, और ए ट्रांसपोज ए के वैसे कितने आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं? और ए ट्रांसपोज ए किसी ने मेरे को बताया था ना एक बार, 2. बताओगे दोबारा क्या था? Because there are only two eigenvalues, so corresponding two eigenvectors are there. 2 आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं, और वैसे भी लाइक ए ट्रांसपोज ए हमारा क्या था, किसी ने मेरे को बताया था अभी ए ट्रांसपोज ए 9 minus 9 minus 9 9. 9 -9 एंड 9, राइट? तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो जनरली मतलब क्या होगा अगर ये फुल, अगर ये है जितना तो order का जनरली होगा। इसमें, हाँ तो इसमें दो ही हमारे आइगन वैल्यूज आई और दो ही आइगन वेक्टर्स है। किसी ने निकाले आइगन वेक्टर्स क्या आएगी? Yes sir. हाँ क्या आएंगे आइगन वेक्टर्स? लेटेस्ट से Eigenvectors lambda equals to 0 के corresponding हमारे 1 1 k1 ओके, लैम्डा कॉरेस्पॉन्डिंग 0 के लिए क्या है? 1 1 k1. 1 1, राइट? दिस इज इट ना? ओके, और लैम्डा इक्वल टू उसके लिए 18 minus 1 1. -1 1, और लैम्डा इक्वल टू 18, सॉरी अंडर रूट, हाँ 18 के लिए नहीं, हाँ 18 के लिए, लैम्डा इक्वल टू 18 के लिए क्या आएंगे? minus 1 1. ओके, लेट मी चेक। मतलब अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन वो 1 -1 आना चाहिए। वो मल्टीपल भी हो सकते हैं सर उनके ना। अच्छा, ठीक है, मतलब लेटेस्ट लाइक अज्यूम के भी 1 -1 आएंगे। ओके, बट द ओनली बट हमको ऑर्थो नॉर्मल में रखना होता है बेसिकली। तो ये ऑर्थो नॉर्मल नहीं है अभी। कोई मुझे बता सकता है कि ऑर्थो नॉर्मल में कौन सा पार्ट मिसिंग है? डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। एग्जैक्टली, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1/√2, राइट? 1/3√2 होगा ना सर? 3√2 क्यों है? नहीं, √2 आएगा, 1/√2 1/√2। आएगा कैसे वो देखना है ना अपने को। ओके, तो कोई एक वेक्टर है 1 1, इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो मुझे कितना है? √2 होगा। √2 होगा, √1² राइट? + 1²। अब मुझे, ठीक है, अब मुझे इसका बताओगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस वाले वेक्टर का इसका इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा, राइट? तो यही नॉर्मल होता है, लाइक ऑर्थो नॉर्मल में का नॉर्मल का मतलब ही ये होता है कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका होता है मैग्नीट्यूड 1 करने का कि तुम मैग्नीट्यूड लो और अरे हर एक एलिमेंट को उससे डिवाइड कर दो। तो लाइक एक वेक्टर है 2,3, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √5 √5। √4 नहीं सर, √5 नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 9 9 4 13 √13 अच्छा चलो होगा। ये ले लो, √2² + ये ले लो, √3²। ये ले लो, इसका बता दो चलो। 4 16 9 25 5 √5 5। √5, राइट? मतलब इसको √5 नहीं 5 होगा ना इसका तो। सर 16 + 9 √25 5। 5। हाँ, तो वो रूट नहीं होगा ना, हम्म, तो 5 और 5, फाइव एंड 5। अब तो अब हम इसका करेंगे तो अब 1 आएगा ना। तो दिस इज हाउ वी, अभी क्लियर हो गया कि हाउ डू वी लाइक नॉर्मलाइज द वेक्टर। ओके कूल, तो ठीक है, ये समझ आ गया कि कैसे नॉर्मलाइज करेंगे। तो लेट्स गेट बैक, तो 1/√2 1/√2 1/√2 एंड 1/√2, राइट? सर हमारा जो ए ट्रांसपोज ए आया था वो आया था 9 -9 -9 9। हाँ, फिर लैम्डा इक्वल टू 0 हम लोगों ने पुट किया, और लैम्डा इक्वल टू 0। नहीं लैम्डा इक्वल टू 0 हमने पुट नहीं किया, बेसिकली अब हमने सॉल्व करी है इक्वेशन। इक्वेशन हमने सॉल्व करी है ये वाली,
AV इक्वल टू लैम्डा वी, ये इक्वेशन है, सॉरी मतलब हमने उसको x बोला था ना वेक्टर को, राइट? और हमने x बोला था, तो अब हमें v निकालना है। तो एक्स वी इक्वल टू लैम्डा वी, तो अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो एक्स वी माइनस लैम्डा वी इक्वल टू 0, राइट? दिस इज व्हाट इट मींस ना। तो अगर मैं v कॉमन ले लूंगा तो x माइनस लैम्डा आई इंटू वी, दिस शुड बी इक्वल टू 0, राइट? फॉर लैम्डा, अगर हमें लैम्डा, अगर हम अभी किसके लिए कैलकुलेट करें, अगर हम लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए कैलकुलेट करें तो एक्स वी शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर अब खुद सोचो, तो एक्स वी अगर इक्वल टू 0 है तो एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स इज जस्ट 9 माइनस 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 क्या था दोबारा? -9 माइनस 9 9। दिस इंटू वी शुड बी 0। तो v के अंदर कितने हो सकते हैं? v1 v2, मतलब समझ रहे हो ना? जी जी सर। v1 इंटू v2 शुड बी इक्वल टू 0 इंटू 0। तो v1 v2 की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? तो द पॉसिबल वैल्यू दैट जो कि अभी हम ले रहे हैं टू सॉल्व दिस एग्जांपल, ताकि हमारा आंसर मैच हो जाए, तो द वैल्यू दैट वी आर टेकिंग इज, द वैल्यू जो कि अभी हम ले रहे हैं दैट इज, ओके। सो आप कोई मुझे बता सकता है कि इसमें क्या क्या v1 और v2 हो सकते हैं? मुझे सॉल्व भी एक तो करने की जीरो, जरूरत नहीं है। एक तो जीरो दिख रहा है। जीरो नहीं होता, मतलब वी डू नॉट टेक जीरो। ओके, जीरो इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन, तो वो तो नहीं लेते हैं। अच्छा, ठीक है, उसके अलावा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए ओके, तो अगर एक सेकेंड, ठीक है, इसको होल्ड करो यहाँ पे। मुझे एक चीज बताओ, आई हैव दिस मैट्रिक्स, इसका पहला कॉलम है C1 और इसका दूसरा कॉलम है C2, और मेरे पास एक वेक्टर है विच इज लाइक दिस, α1 α2। तो हम कैसे मतलब लिखते हैं उसको? C1 अल्फा तो 1 C2 अल्फा 2 एग्जैक्टली C1 इंटू α1 प्लस C2 इंटू C2 α2, अल्फा 2। C2 इंटू α2, राइट? दिस इज हम्म हाउ वी राइट इट। तो कुछ सब दिख पा रहा है यहाँ पे? इसको यूज करके कोई गेस कर सकता है? 9v1 9v1 माइनस 9v2। 9v2। तो v1 बराबर 1 हो गया, v2 बराबर भी 1 रख देते हैं। v1 बराबर -1, v2 बराबर 1, 1 -1। नहीं, 1 माइनस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? v1 -1 है, v2 1 है। 9v1 इज इक्वल टू 9v2। v1 इज इक्वल टू v2। हाँ, तो v1 इक्वल टू v2 मतलब हो गया वही ना, 1 -1। 1 v1 1 1। 1 1 हो गया ना, वही। अरे इन दोनों का सम देखो, 9 माइनस 1, 9 माइनस 9, सॉरी, इसका सम क्या है? 0। इसका सम क्या है? 0। तो हमें 1 1 चाहिए ना यहाँ पे, कि ताकि वो आपस में ऐड हो जाए। व्हाट आर वी डूइंग? अगर मैं अल्फा को 1 ले लूं और अल्फा 2 को 1 ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 मिलेगा, राइट? अगर मैं अल्फा 1 को 1 ले लूं और अल्फा 2 को भी 1 ले लूं तो मुझे C1 प्लस C2 मिलेगा। C1 प्लस C2 0 0 है ना? तो मतलब एक आइगन वेक्टर तो मेरा आ गया ना, 1 1, जो कि हमारा बताया भी था मुझे भी किसी ने, 1 1। दिस इज लाइक हमने यहाँ पे निकाला भी था और फिर इसको नॉर्मलाइज कर दिया। तो ये समझ में आ गया? यस सर। Sir, we can use the rank method or the solving of the equation of the class 10th method. हाँ हम इसमें एग्जैक्टली, रैंक मेथड भी मतलब यूज कर दैट इज, सकते हैं और हाँ क्लास 10 से इक्वेशन सॉल्विंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। दैट इज, हाँ मतलब मतलब इक्वेशन सॉल्विंग से ही आंसर आएगा टू बी ऑफिशियली, बट मैं एक दूसरा लाइक एक सोचने का एक फास्टर तरीका बता रहा था कि दैट इज व्हाई लाइक वी हैव टोल्ड यू लाइक ट्राई टू लाइक विजुअलाइज कि हम हाउ डज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लुक्स लाइक। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल आगे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स में, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल कि हाउ डू वी विजुअलाइज दिस। ओके, अनदर वे ऑफ विजुअलाइजिंग दिस इज लाइक taking this row and multiplying by this entire column, taking this row and again multiplying. So you just need to like revise, make like these are the two way, मतलब ये दो तरीके हैं कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे देख सकते हैं। एक तरीका ये है अल्फा 1 इंटू C1, अल्फा 2 इंटू C2, और दूसरा तरीका ये होता है कि लाइक यू टेक दिस रो एंड दिस कॉलम,
यू टेक दिस रो एंड दिस कॉलम, तो बेसिकली ये रो का और ये का सम हो जाएगा। इस ठीक है, अगर ये वाला पार्ट अभी समझ नहीं आया तो लेट्स लीव इट। वो समझ इसको हम गया बाद सर, में। वो आप कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम का सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ। हाँ एग्जैक्टली, तो वो ही है कि हम्म, पहला वो कैसे निकलता है। ठीक है, ठीक ओके, तो वो काफी हेल्पफुल होगा वैसे बाद में जाके। अ, तो है। अभी इसीलिए बट वही ठीक है। यूज किया गया सर। हाँ हाँ, तो फिर ये पार्ट क्लियर है ना, तो कैसे आया हमारे पास। तो बेसिकली व्हाट डू सम पीपल डू, दे मतलब कुछ पीपल ये सीधा इसको याद कर लेते हैं, बट लाइक याद करने से अच्छा दिस इज द मोर इंट्यूटिव वे कि हम यहाँ तक पहुंचते कैसे हैं। तो हमें पता है कि आइगन वैल्यू की इक्वेशन, आइगन वैल्यू डिफाइन ही ये इक्वेशन करती है, राइट। एक्स वी इक्वल टू हम्म, लैम्डा वी। ओके, चलो हमने डेफिनेशन की बात करी। कोई मुझे बता सकता है कि जब सर ने बताया था तो मतलब क्या क्या सर ने बताया था कि आइगन वैल्यूज की सबसे अच्छी बात क्या होती है, जो कि इस इक्वेशन से भी हमें साफ साफ दिख रही है कि ज्योमेट्री कुछ मुझे बता सकता है कोई इसकी कि क्या होती है। Basically, it stretches the vector in same line, so it doesn't rotate it. Exactly. So this is the best part of like being an eigenvector. It is something that sorry मतलब अगर मैं थोड़ा डेविएट हो रहा हूँ तो डिफरेंशिएशन में जैसे e की पावर x होता था ना, कि लाइक यू गो ऑन डिफरेंशिएटिंग इट इट को वो e की पावर x ही रहता है हमेशा। तो ये भी कुछ इस तरह से ही है कि आप मल्टीप्लाई करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ये वेक्टर ट्रांस लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। हम एक वेक्टर को उठा के कहीं और लेके जा रहे होते हैं, बट ये वेक्टर ऐसा है कि इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो। आप अगर मैं इसको एक और x से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, विल एनीथिंग हैपन, लाइक अगर मुझे पता है कि x भी है, अगर मैं यहाँ पे एक और x से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ होगा क्या। नहीं, कोफिशिएंट पे इफेक्ट पड़ेगा, बट वेक्टर पे कोई हाँ, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। वेक्टर का वेक्टर सेम रहेगा, मैं क्योंकि अगर ये हाँ अगर जैसे मुझे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है एक्स स्क्वायर वी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स वी, राइट। एक्स वी क्या है, लैम्डा वी। Yeah, class में sir ने prove किया भी था ना इसको, how हाँ the lambdas हाँ vectors ओके। will हाँ actually be अब ये same. लैम्डा जो है वो बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा इंटू एक्स वी, और एक्स वी का फिर से लैम्डा वी हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू लैम्डा वी एंड लैम्डा स्क्वायर वी। तो मतलब वी को कुछ नहीं हुआ, राइट। तुम एक और लाइक अगर हम एक और एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वी को, तो भी वी ही रहेगा, बस स्केलिंग पे फर्क पड़ने वाला है, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग शायद ज्यादा ही डेविएट हो गए। तो वी हैव लाइक हाँ हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई है, तो v1 हमारे पास आ चुका है। v1 इज ओके। अच्छा, हमने गलती करी है, कोई बता सकता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, या फिर v1 क्या होना चाहिए। जो अभी हमने हमने दो आइगन वेक्टर्स निकाले हैं, दो आइगन वेक्टर्स निकाले हैं, ठीक है। और वो दो आइगन वेक्टर है, एक है 1/√2, एक है -1/√2, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करता है 18 के लिए, आई गेस हाँ 18 के लिए। एक ये आइगन वेक्टर, एक ये कॉम्बिनेशन है, और दूसरा था आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। दूसरा आइगन कोई कॉम्बिनेशन बता सकते हैं, एक 0 था, और एक जो हमारा दूसरा आइगन वेक्टर था वो था 1/√2 1/√2, जो कि हमने निकाला भी। अब उसमें से मैं v1 किसको बोलूंगा, मैं v1 किसको बोलूंगा। जो लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको भी वन लेते हैं, जितना बड़ा नहीं, होगा। लैम्डा का हाँ क्या था कि हाँ लैम्डा जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर धीरे एग्जैक्टली धीरे हाँ। छोटा होते तो हुए आएगा। हाँ मतलब हाँ ये इसमें कुछ सही गलत नहीं है, मैथमेटिकली तुम कुछ भी ले सकते हो, वो सही है। बट जनरल कन्वेंशन, जो जनरल कन्वेंशन इस फील्ड में फॉलो किया जाता है वो ये किया जाता है कि सिग्मा वन जो हम लेते हैं, तो अगर जैसे हमने यहाँ पे एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाया था ना सिग्मा को, यहाँ पर ये ट्रांसपोज। हाँ मतलब हमने कहीं पे तो हाँ शायद हमने कहीं पे तो ये बनाया था सिग्मा को, जब हम लिख रहे थे, तो सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 टू सिग्मा n, राइट। याद है सबको, हमने लिखा था कि सिग्मा 1 होता है। तो जनरली व्हाट वी नो इज दैट कि सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा 2, दिस इज द कन्वेंशन दैट वी फॉलो। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं जनरली, ओके। तो इसीलिए v1 जो होगा हमारा वो सिग्मा 1 के कोरेस्पॉन्डिंग होगा। सिग्मा 1 मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग होगा, वो क्या होगा 1/√2 -1/√2, एंड लाइक v2 क्या होगा,
V2 होगा 1/√2 एंड 1/√2। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इस वाले पार्ट में? दिस इज क्लियर राइट? दिस इज क्लियर? ठीक है, तो ये तो अब हमारा हो गया है काफी। तो V मैट्रिक्स, अब हमारा V जो मैट्रिक्स होता है, वी नो दैट इट इज V1 V2, तो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, बट V1 एक कॉलम वेक्टर, V2 एक कॉलम वेक्टर। तो V भी हो गया, अब क्या बचा है? लेट अस कम टू थर्ड स्टेप। अब कौन सा मैट्रिक्स फाइंड करना बचा है? यू। ओके, दिस इज अ प्रीटी बिग क्वेश्चन। मतलब काफी, अब हमारा बचा है U। ओके, तो कैसे चलेगा? अब कोई डिफरेंट लेट अस कम अप विद डिफरेंट आइडियाज कि हम कैसे निकाल सकते हैं। सर ने तो बताया था 1/σ1 करके, 1/σ1 इंटू A इंटू V1, 1/σ1 इंटू A/V1, A इंटू V1। σ1, सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, A इंटू A V1। इंटू V1, अच्छा, ये U1 आ हाँ, जाएगा। ये कैसे आया? ये तो बेसिकली हमारा 1/σ1 जो है, अगर हम ये कैलकुलेट इक्वेशन पे जाए, हाँ U सिग्मा V एग्जैक्टली, यहाँ से ट्रांसपोज शुरू करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट विद इक्वेशन। इक्वल हमें पता है कि A V इज टू समथिंग लैम्डा सिग्मा V। U। सिग्मा मतलब अगर हम अब इसमें आ गए हैं, A V इज सिग्मा U, राइट? तो मतलब अगर हम पुट कर दें तो A V1 तो A V1 इज इक्वल टू σ1 U1, राइट? मतलब इक्वेशन से ही आया ना ये, तो मतलब ये जनरल इक्वेशन है, और मैंने V की जगह V1 पुट कर दिया, सिग्मा की जगह σ1, तो U1 क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से? ये V1 1/σ1 1/σ1 AV1। ठीक है, इसमें कोई तो कुछ अब ये क्लियर है ना ये? मतलब ये याद करने का, लाइक मैं इसको ऐसे बस रटा नहीं है मैंने, तो मुझे पता है ये कैसे आया है। तो ये एक थोड़ा लाइक अगर अभी देख लिया तो याद रहेगा। तो V1 क्या है? V1 ये है, σ1 ये है। तो V1 क्या है? V1 इज 1/√2 माइनस 1/√2 एंड σ1 इज 3√2, राइट? अब मुझे बता सकता है कोई कि U1 क्या आया? मतलब ये तो सिंपल ही है, ए भी पता है, वी नो A, वी नो V1, वी नो σ1, तो U1 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, राइट? तो U1 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो सोल्यूशन में है, आई एम जस्ट राइटिंग इट, मतलब इट्स प्रीटी सिंपल। मतलब किसी को लाइक मतलब किसी को चाहिए मैं कैलकुलेट करूँ, इट्स प्रीटी सिंपल। लाइक यू नो A, यू नो V1, सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, और σ1 तो एक कांस्टेंट ही है, तो 3√2 से डिवाइड कर दो बस। ओके, सो तो जो U1 की वैल्यू आएगी, दैट वुड कम अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1/3 माइनस 2/3 एंड 2/3। ओके, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। कोई मुझे U1 का मैग्नीट्यूड बता सकता है क्या एक बार? वन कैसे? लाइक स्क्वायर कर दिया, रूट अंडर राइट, वन तो स्क्वायर। U भी एक ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स है, उसका भी हमें यही रखना होता है। तो सिमिलरली हम लोग U2 निकाल सकते हैं, राइट? ये हम मैट्रिक्स U हम लोग हमेशा ऑर्थोनॉर्मल ही रखेंगे क्या? हाँ, ये हम जनरल कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल ही रखो। मतलब ये भी एक कन्वेंशन है। मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, बट हमेशा से मैं बस ऑर्थोनॉर्मल रखते ही आया हूँ। तो एनआईसी की ऑर्थोनॉर्मल ही रखना होता है। एक ऑर्थोगोनल भी रख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से लाइक क्योंकि वो कुछ ए इनवर्स को हम ए ट्रांसपोज लिख देते हैं, तो शायद वो ऑर्थोनॉर्मल की केसेस में ही ट्रू होता है। तो आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे नहीं पता। लाइक आई विल चेक and get back to you in the next session. But generally अभी for the next, like अगर if you have any assignment or anything pending, तो make sure कि इसमें तुम ऑर्थोनॉर्मल ही रखो मैट्रिक्स को इन एसवीडी, V और U मैट्रिक्स को।
ओके, तो सेम हम U2 भी निकाल लेंगे अपने लिए, ठीक है। तो हम U1 और U2 भी निकाल लेंगे अपने लिए, AV2 इक्वल टू सेम हम लोग अपने लिए तो हम अब U2 भी निकाल लेंगे। तो U2 कैसे आएगा, AV2 इक्वल टू सिग्मा 2 U2, राइट। ओके, तो ठीक है, तो हमने U2 भी निकाला। अब हम कैसे लिखते हैं, A इक्वल टू U सिग्मा A equal to U sigma V transpose, right? Excuse me, sir. In हाँ, U2, sigma 2 is 0. right. 1 upon 0, multiply the matrix A, multiply the vector V2. हाँ. Okay, yeah, that's a good question. Just let me check. Give me a second. I'll get back. क्या वापस ऑफलाइन है, वाह, लेक्चर के बीच में क्या ऑफलाइन। Okay, sorry for it. We missed a very important point. Okay, so basically, how many non-zero values, singular values were there? How many non-zero singular values were there? Definitely, एक ही हाँ, है। हाँ, एक ही है। तो हम U2 तो नहीं निकाल सकते ऐसे। Thank you. Like, I don't remember who pointed out, but thank you, Dheeraj. Like, yeah, thank you for it. Okay, तो हम U2 तो ऐसे नहीं निकाल सकते। तो what we have with us is a U1. हमारे पास सिर्फ U1 है, ठीक है। अब एक बार मेरे को बताओ, A की डायमेंशन क्या है? A की डायमेंशन क्या है? A की डायमेंशन क्या है? What is the dimension of A? 2 into 2. A का डायमेंशन 2 into 2, 3 into 2 है। 3 into 2. ओके, हाँ, तो U का डायमेंशन बता सकते हैं मुझे क्या होगा कोई फिर? 2 into 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 into 3 U का डायमेंशन। हाँ, एग्जैक्टली 3 into 3. सिग्मा की डायमेंशन क्या होगी? 2 by सिग्मा 2. का 2 by 2, 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 क्यों होगा? गलत कैसे गलत हो गया। मल्टीप्लीकेशन? हाँ, एग्जैक्टली गलत हो गया। तो क्या होगा इसका डायमेंशन? U पता हो जाएगा 3 2 क्रॉस क्रॉस 2 होगा ना? नहीं, हाँ 2 सर, क्रॉस 2। 3 होगा, राइट। तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे ना। नहीं, 3 क्रॉस 2, सॉरी, मतलब मैं नहीं भी सर, गलत। 3 क्रॉस। हाँ, एग्जैक्टली 3 क्रॉस 2, तो ताकि ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाए, राइट। तो यहाँ पे 3 होगा और क्रॉस 2 होगा, यहाँ 2, राइट। ओके, अब V का तो हमें पता ही है कि V ट्रांसपोज 2 by 2। 2 क्रॉस 2 है। ओके, तो V तो ये तो हमारे पास कंप्लीटली है मैट्रिक्स, जैसे तो हमने जनरेट कर ही लिया V1 और V2 से। ये तो हमारे पास कंप्लीटली आ ही गया ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई मुझे बता सकता है सिग्मा मैट्रिक्स क्या है हमारा? 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। कोई बता सकता है सिग्मा मैट्रिक्स क्या है सर? इसमें सिर्फ एक ही तो नॉन जीरो एंट्री है, लाइक सिग्मा 1 यहाँ पे आएगा,
3√2 सिग्मा 2 यहाँ पे कहीं आता है तो वो तो 0 ही है, और उसके अलावा की सारी बाकी एंट्री सर 0 0। होंगी, तो 0 0 0 और 0। तो सिग्मा मैट्रिक्स भी अपना सॉर्टेड है, राइट? मतलब सिग्मा मैट्रिक्स भी है हमारे पास। अब है यू मैट्रिक्स, तो देयर इज अ ट्रैक इन इट, आई जस्ट रियलाइज। ओके, देयर इज अ ट्रैक इन इट। तो u1 वेक्टर्स कहाँ पर है? ओके, तो u1 वेक्टर्स बिलोंग टू R3, राइट? u1, तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड u2 एंड u3 बाय ourselves। तो u2 और u3 हमें खुद से निकालने पड़ेंगे, सच दैट दिस सैटिस्फाई दैट, मतलब u1 एंड u2 और u3 हमें खुद से निकालने पड़ेंगे सच दैट कि ये वाले वेक्टर्स दे स्पैन R3, तो दे स्पैन R3। ओके, तो ये u2 और u3 हमें खुद से यहाँ पे निकालने पड़े सच दैट दे स्पैन R3। तो u1 वेक्टर हमारा क्या आया था? u1 वेक्टर वाज हमारा, u1 वेक्टर इज 1/3 - 2/3 2/3। हाँ 1, मतलब ठीक है, अगर मैं 1/3 बाहर ले लेता हूँ भी, तो व्हाट वाज इट? 1 माइनस - 2 1 - 1 2 2। -2 2। ओके, सो वी नीड टू एक्सटेंड, हमें u1 हमें पता है, u2 और u3 हमें निकालने हैं। ओके, u1 और u3 हमें निकालने सच दैट u1 u2 एंड u3 दे फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ओके, दे फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर R3, ऐसे। तो हमें u2 और u3 निकालने हैं, u2 and u3 we need to find out such that they form an orthonormal basis for R3। ओके, तो u1 u2 u3 अगर हमें निकालना है तो बेसिकली अब कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सॉरी, तो कैसे निकालेंगे? लाइक वी नो, तो अगर अगर u1 क्या है? u1 इज दिस 1/3 1 -2 2। ओके, तो हमें पता है कि लाइक the equation corresponding to it is 1/3 x1 -2x2 plus प्लस 2x2, 2x3 होगा। 2x3, sorry 2x3। ओके, दिस इज द इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट। और और इसमें तो ट्राइवियल सॉल्यूशन ले लेंगे ना, फिर इक्वल टू 0 हाँ, करके इसका इंस्टीट्यूट इसका करेंगे। इक्वल टू 0 करके सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन ही हम लेंगे। लाइक ओके, तो मतलब पॉइंट इज, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लाइक α1 v1 प्लस α2 v2 और α3 v3, α2 और लाइक इनका एक ही ट्रिवियल ही सोल्यूशन होना चाहिए, तो तभी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। Okay, so when we like find out the trivial solutions of it, like we'll get another two vectors. We'll get another two vectors that, and like these three vectors will form an orthonormal basis for it. Okay, these three vectors will form an orthonormal basis for R3. Okay, these three vectors will form an orthonormal basis for R3. And then basically we'll be done for it. We'll normalize the columns, and we'll be done for it. So yeah, that is this question. So we'll find out. So u1 we know, u2 and u3 will calculate from this equation, using this equation. So basically we'll be reducing it to a row reduced echelon form and like going it. Okay, so this is, and then basically we'll find out this A equal to u sigma and v transpose. Okay, so is this clear? Okay, I was not really, मतलब मुझे aware नहीं था कि like इसमें u2 u3 नहीं निकल पाएगा. So in my next session, that would be like after, like not on Friday but on next Tuesday, I guess. So I'll like I'll reiterate on this part. So let us keep a hold on it. तो हमें पता है कि u1 कैसे आया, right? We know कि u1 कैसे आया, right? हाँ या ना बोल दो यार एक बार. यस सर, यस सर। हाँ, अभी u2 और u3 is not that clear कि कैसे आया, right? So I'll reiterate on it in the next class. Sorry for it, but yeah, I'll reiterate on it
अभी के लिए like what is written in the solution is that ki we will like we will like find you will making an orthonormal basis for R3. This is the entire idea. Okay, because like we also know that U is also an orthonormal matrix of for A transpose is a PhD matrix, right? A transpose is a PhD matrix, right? What is PhD matrix? Positive Positive semi-definite. semi-definite. PSD. Okay. Okay. And we know that somehow U forms the eigenvectors from it, right? So basically U also needs to be an orthonormal base. U must be an orthonormal matrix because we know that eigenvectors of a symmetric matrix are orthogonal. Eigenvectors corresponding to distinct eigen values of an symmetric matrix is orthogonal, right? Is this correct, guys? Yes. Okay, so A की shape क्या है? Like A is 3 cross 2, right? ये वाला सर जरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये वाला हाँ. चीज U सिग्मा V ट्रांसपोज जो है अगर अच्छा, A का हाँ, A that- का हमारा A का मैट्रिक्स अगर हमारा 3x2 है तो हाँ. U तो 3x3 होगा ये समझ में आ रहा है हाँ. लेकिन सिग्मा का शेप और V का शेप हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे ऐसा अरे, कुछ है क्या फंड हाँ नॉर्मल है ना. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है? अगर मुझे कि कॉलम एक एक पार्ट ले लेते हैं हम लोग हाँ एक जैसे पार्ट M ये क्रॉस N 3 है। क्रॉस 3 ये 3 ये देखो सबसे पहले मैं इसको ब्लाइंडली तो एक चीज होल्ड करना मेरे नेक्स्ट सेशन में whenever like it will be scheduled I'll discuss this कि U2 और U3 कैसा है. Most probably it will be on next Tuesday itself. I'll keep this U2 and U3 कैसा है और also discuss इसका intuition क्या है. ठीक है, बट लेट मी टेल यू दिस इज जो भी एक डाउट पूछा A is equal to U sigma V transpose. तो A की डायमेंशन बताओ मुझे अभी लेटेस्ट से 3x2. इट इज लेटेस्ट से कि 4x5. ओके ठीक है ओके, तो लेटेस्ट स्टार्ट. तो U की पहली डायमेंशन क्या होगी? 4x4 4. तो क्योंकि ये 4 को तो हम मैच कराएंगे ना. 4 तो होगी और स्क्वायर होता है U. सिंपल सी बात है, राइट? U तो स्क्वायर होगा ना, मतलब तो 4x4, राइट? ओके, तो और अब सिग्मा की ये अगर 4 है तो सिग्मा की एक तो फिक्स हो गई ना 4, क्योंकि लाइक व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग इट तो ये डायमेंशन तो मैच होनी चाहिए ना, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. लाइक लेट मी नॉट मेक इट मोर कंफ्यूजिंग. तो लेट अस लाइक हम अपने एग्जांपल से ही चलते हैं. ए की डायमेंशन अभी 3x2 है, राइट? सर U हमें सिग्मा जो है हमारे को आइजन वेक्टर ऑफ आइजन वैल्यू देता है V सिग्मा हमारे हाँ सिंगुलर वैल्यूज होती है और एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है सिग्मा 1 सिग्मा 2. ठीक है और Okay. V जो है हमारा आइजन वेक्टर हो गया सिग्मा का आइगन वेक्टर्स हो गया. तो और U जो हो गया V हमारा तो हाँ V तो सीधा सीधा हमने निकाला ही था और 2x2 वो आ ही गया था. नहीं तो हमारे तो को शेप कैसे डिटरमाइन करेंगे अगर इनकेस क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया हुआ रहेगा कि हाँ अगर A कोई मैट्रिक्स है 6x5 या कुछ भी M×N हाँ का तो हाँ U सिग्मा और V का शेप क्या होगा तो हाँ. ये तो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं ये कैसे डिटरमाइन कर सकता है, मतलब एग्जैक्टली तो आई बी एबल टू टेल यू कि एग्जैक्टली कैसे करेंगे, बट मैं अभी कैसे करता हूँ वो बता सकता हूँ. अब लाइक आई टेल यू द लेजिट वे. मैं सही तरीका बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में. अभी आई डोंट नो, बट व्हाट मैं कैसे करता हूँ उसका तरीका ये है कि तो ये 3 तो फिक्स हो गया, राइट? हाँ ये तो ठीक है क्योंकि ये समझ में ये आया और U हाँ, ये U हमारा हमेशा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो हाँ क्योंकि सिमेट्रिक होता है ना यू, तभी यू और वी तो हमारे ऑर्थोनॉर्मल होते हैं ना. लाइक दे आर द बेसिस वेक्टर. तो हाँ बेसिस ठीक तो है हमेशा सिमेट्रिक होता ही है ना. लाइक अगर R3 का बेसिस है तो R3 का बेसिस है तो उसमें एक वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 3 होंगे. और अगर मुझे इसका कोई बेसिस बनाना है तो बेसिस में कितने वेक्टर्स होंगे? 3x1 मतलब एक एलिमेंट में 3 वेक्टर्स है, राइट? एक एलिमेंट में 3 वेक्टर्स होंगे A B C. बट अगर R3 का कोई बेसिस है तो उस सेट में कितने वेक्टर्स होंगे? 3 linearly 3 independent लीनियरली इंडिपेंडेंट, राइट? पिछली बार ही हमने डायरेक्शंस का डिस्कस किया था अगर याद हो.
तो ए बी सी, तो ये तो अगर, तो ये तो सिमेट्रिक हो ही गया ना, लाइक मतलब सिमेट्रिक नहीं, स्क्वायर हो गया ना, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, स्क्वायर, 3x3, राइट। तो सिंस यू स्पैन्स, यू भी एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की तरह एक्ट करता है और वी भी, तो ये लोग तो स्क्वायर तो हो ही गए। अब इनकी डायमेंशंस मैच कराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सिग्मा। तो इसलिए हमें सिग्मा की डायमेंशन हम मैनिपुलेट करेंगे। तो यू 3x3 आ गया, और तो सिग्मा आप देखो, तो ये 2x2 आ गया, तो ये वाला 3 यहाँ पे आएगा ताकि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो, और ये वाला 2 यहाँ पे आएगा ताकि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो। तो ये नॉर्मल एक मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के तरीके से ही मैंने लाइक वहां पे डायमेंशंस लिख पाया। तो ये क्लियर हुआ सबको? मतलब आई गेस थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि मैं कैसे सोच रहा था इसके बारे में। Is it clear, guys? Yeah, it's clear. Okay. So I was talking about that intuition part of calculating U2 and U3. I'm not exactly calculating that, like I'll do it in the next session, but I'm just letting you know the intuition behind it. Give me a second. Yeah. So basically, we have this matrix AA transpose. AA transpose. We have this matrix, right? AA transpose. So like this, can anybody tell me like what sort is it? Is a PhD matrix, right? A transpose, it is a PhD matrix, right? Yes, sir. Positive significant. और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, और राइट? बिना सिमेट्री का तो पीएचडी हो गई। हाँ, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम इसके आइगन वेक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ ट्रेस आइगन नहीं, वेक्टर्स। हाँ हाँ बोलो यार, कोई और बोलो। इनके आइगन वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी होगी? मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, सर ने भी लाइक फर्स्ट स्ट्रेस किया था इस पे, और हमने लास्ट सेशन में भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया था इसको। They are orthogonal to each other. Exactly. So they are orthogonal to each other, right? Orthogonal है तो linearly independent भी होंगे, Yes. because we'll not be able to write it. Hmm. उस solution का सिर्फ एक ट्रिवियल solution आता है। तो ये linearly independent भी है, right? तो linearly independent भी है, तो अभी क्या होगा? Like these vectors, मतलब ये लोग qualify करते हैं to form a basis, of अब अगर ये 3x3 के है, तो these vectors they will form a basis for R3, और अदरवाइज अगर 4x4 है तो they'll form a basis for R4, और अदरवाइज लाइक हम लोग डेफिनेटली बस ऐसा बोल सकते हैं कि U1 U2 और U3 में वो तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो they will be forming a basis for it. ओके, तो यहाँ से ही वो आइडिया आया था, यही से वो आइडिया आया था कि लाइक वी नो U1 and like we'll be calculating U2 and U3 by extending it to a basis. ये exactly कैसे हुआ, that I'll like get back to you in the next session. Next section में like we'll be calculating U2 and U3, but अभी समझ में आ गया ना कि like थोड़ा सा आइडिया लगाना कि like what are they trying to say. Okay, so like I'm done with the session. Like आज भी like what I planned to discuss was this, but I was not able to do so. So okay, I have a question for all of you. How many of you guys know Python or have done any sort of coding in Python? You guys can just raise your hands or write a +1 in the chat. Okay. What about others? Okay. 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 I guess I asked मैंने गलत question पूछ लिया. Like who, like anyone here who is not at all like familiar with Python or Jupyter notebook or Colab notebook? मतलब Jupyter और Colab एक ही बात है. तो anyone who is not at all familiar, मतलब जिसने आज तक कभी यूज नहीं किया Python या फिर Colab notebook, वो एक बार hand raise कर दो, so that I will be able to see it.
I guess फिर सभी ने यहाँ पे Python use करा है फिर I guess. So that's why like I'll plan the next session accordingly फिर. And everybody is comfortable with Jupyter Notebook, right? Guys, like, yes or no? Shiv, so you're not comfortable with Python or with Jupyter Notebook? Okay, but you are comfortable with Python. Okay, yeah, then it won't matter. But Jupyter is just like it is basically a way to execute your Python program. It is हम लोग वहाँ program लिखते हैं, but that's it. Or possible if possible, like just try to watch a YouTube video with a short introduction to Colab notebook or a Jupyter notebook. That would be enough. But if you know Python, though, yeah, PyCharm. But for data visualization and for machine learning, definitely like nothing can beat Colab or Jupyter. So yeah, that's it's like it's not even in Colab, like you'll never be messing up with your processor and anything else because it all the thing मतलब सब चीजें cloud पे चल रही होती हैं. तो if you want to install any library, तो जो कि that library is not like very well authored, वो इतने अच्छे से नहीं लिखी गई है, so you don't have to worry about it. वो सब cloud पे होता है. तो yeah. I guess everybody else is comfortable with Collab. So in the next and with Python, so in the next session, I'll be simply we'll complete this. How do we find U2 and U3? That is the agenda. We'll complete like U2 or U3 कैसे आया. We'll find out U2 and U3. And like secondly, we will discuss if time permits. We will discuss a bit of like a difference. We will discuss something like we'll get started with NumPy. And we'll get started with a brief introduction to NumPy and a bit of Colab notebook and like difference between list and arrays, list versus arrays. So this is what I plan to cover in the next session. For today's session, yeah, thank you for joining us. Sir, I If you have have to any share my questions, screen. oh yeah, definitely. Any like the session is officially over. So even the live stream can be stopped in like those who मतलब जो लोगों को जाना है वो लोग जा सकते हो. Yeah, you can share your screen. So like if you could just close the live stream. Okay. So might be my screen is visible to you. Yes, it is visible. Sir, here I have calculated that similar value decomposition with the help of NumPy. Okay. So here is my matrix which I have taken about. That is 1 minus 1 minus 2, 2, 2 minus 2. I have given a syntax for it. Okay. So I'm getting this U as minus 0.33, 0.66, minus 0.66. Isn't it? And S is the similar value that like an eigenvalue and eigenvalue Okay. decomposition. So Okay. here the eigenvalue is only coming one, that is 4.242. This is not matching. Why is it so? This is the eigenvalue is coming out to be the eigenvalue is coming out. This is not matching. Yeah. Give me a second. I'll check it. This should not happen. U is coming correct and B is also coming correct, right? So if U is 3 cross 3, then it has to be. I guess it is like giving you not the entire matrix, but only the singular values that corresponds. It is not returning the entire matrix. Sir, here I have given that full matrix is equal to true.
I've Okay. given the comment over here. If I will take it as a full matrix is equal to false, then Huh. the shape of the value is also be not being giving all the values. The highest Okay. values will only giving there. So I am Okay. unable to get over here. So That. if could you just open the documentation of np.linearalgebra.xvd? Yeah, for sure, for sure. Let's check it out. Is it visible to you, sir? Yeah. See, na, it is like giving you when A is a 2D array, it is factorized at u np dot diagonal s and v u on 2D. See, na, it is returning s is a 1D array of singular values. So the s that you will get will always be a 1D array of singular values. It won't be returning you as it as a matrix. Sir, somewhere here it is written that it will not be a singular value if the full matrix is equal to be true. If true, default u and vh Huh. are the same shapes of m, comma m Hmm. and n comma n respectively. Hmm. Otherwise, the shapes are m comma k and k comma n respectively. So it Where talks k is about equal to it. So see that it talks about the matrices. It doesn't talk about S. It says that S will always be that 1D array. Okay. It only talks about the shape of the matrix of U and V. U So and VH. Yeah. It does not talks about the shape of. It doesn't talks about the shape of S. And see that it is a vectors with singular values within each vector sorted in descending order. Okay, and like it always returns it as a 1D array. So yeah, you'll have to like check the documentation of this. So it won't be returning it it would be only returning it as a one-dimensional array of singular values instead of returning it as a matrix. So Yeah, rather than if you want it in like that diagonal and matrix format, you can actually convert it back using some command. I think there is some command to convert into identity value with diagonal or something. But this gives as just one vector of all the values on the diagonals. Just yeah. so I want to rather than ask that here it is also giving some type of one dimensional, and here also it is just been committing as a the value of the vector, that is the v vector which we are calculating, is also not computing true. Why is it so? Sorry, is it not? I'm sorry, it's not. The question So was not vh clear. हाँ ये तो vh सही is the मैट्रिक्स है vector. ना. ये आ रहा है -0.7 हाँ तो ये पूरा 0.7 मैट्रिक्स आ रहा 0.7. है ना V1 यही तो आना चाहिए -1/√2 1/√2 1/√2 1/√2. तो ये तो सही आ रहा है. नहीं, हमारा जो आया था, हमारा आया हाँ था क्या, हमारा आया था -1/√2 हाँ 1/√2 1/√2 -1/√2. हाँ आई गेस ये ट्रांसपोज्ड है उसका VH है इसीलिए. अगर सर ट्रांसपोज में भी देखे तो फिर तो वैल्यू सेम ही हो रहा है. यहाँ पे एक माइनस का साइन छूट रहा है ना. अगर ट्रांसपोज है तो यहाँ छूट रहा है, ट्रांसपोज नहीं है तो फिर यहाँ छूट रहा है. नहीं एक ही तो माइनस का साइन था ना हमारे हमारे में भी. तो एक ही माइनस का साइन था और शायद उसने सोल्यूशन 1 -1 की जगह पे -1 और 1 ले लिया होगा. तो लाइक वो अच्छा, जो इक्वेशन को सॉल्व करा होगा. हाँ तो वो उसने सोल्यूशन ले लिया होगा. 1 -1 की जगह पे -1, 1 ले लिया होगा सोल्यूशन को. ओके ओके. ओके सर, थैंक यू सर. या तो इसका लाइक करेक्ट ऑप्शन वाज कि लाइक यू डू बेसिकली व्हाट द इंटेंशन वाज कि यू सॉल्व इट बाय हैंड और अदरवाइज यू बेसिकली मल्टीप्लाई यू सिग्मा एंड वी ट्रांसपोज एंड चेक कि किससे ए वापस बन पा रहा है. तो दैट वाज समथिंग दैट आई रियली लाइक वांटेड, इसीलिए वहां पे ऑप्शंस थे. तो दिस इज लाइक व्हाट वी एक्सपेक्टेड कि you multiply u sigma and v transpose and see whether any of the option was giving it or not. Yeah, but the correct solution was there. Okay, yeah, so I guess we are done with today's session. Thank you for joining, guys. थैंक यू सर फॉर दैट. Okay, in the next session, like we'll be discussing that as planned if we have the enough time limit. ओके. Okay, thank you. Thank you.